First of all, I would like to thank everyone who has come and joined us. This is our new initiative. I would thank Tauji and Professor Pradeep Venkatesh. So Professor Pradeep Venkatesh has been my mentor all through, and whatever I have learned, whatever I have done so far in my life belongs to him in ophthalmology. And since my first day of joining and till now, he has been my mentor and teacher. Apart from studies, I've learned so many things from him. Thank you, sir, for coming. I really appreciate that. He has been tutor to all of us, to most of our consultants also. So it's a journey we started when I started my private practice in 2016. It's not a lecture. So we started the journey after finishing my Retina Fellowship from All India Institute of Medical Sciences. And when I came to private practice, I saw that in AIIMS, the follow-up and connection to the patients is very less. So we can't connect too much with the patients because of the time constraint and rotation which is happening. But when I started my private practice, I found that diabetes is becoming the leading cause of blindness in young adults. So when we joined in 2002 MBBS, the median age group of diabetic patients was 50 to 60 years of age, which had shifted to 40 to 50 in 2016. And most of my patients were very young and they were losing their vision. So the thought process started that we should be doing something for these kind of patients. So it was my vision that someday we will start some diabetic eye prevention program. I started myself and I used to write diabetic eye clinic on my visiting cards so that people get awareness that there is something called diabetic eye clinic. Over a period of time, we were treating these patients, we were keeping them on follow-up, but journey was continuing, but the economical burden of the treatment was increasing and increasing day by day because we were getting a lot of these patients with both eye diabetic problems. बार-बार diabetes के कारण आँखों में blood आ जाना. I'll be speaking both in English and Hindi because of the patients also there. तो बार-बार treatment के लिए आना, बार-बार injections लगवाना. We have few people sitting here जिनको लगते रहते हैं. हर 2 महीने, हर 1 महीने पे बार-बार ट्रीटमेंट लेना. So it was very cumbersome. So we were evaluating our results. तो देर के में फेज जहाँ पर हमें लगा कि we should do something else. Then we started incorporating actually the diabetes control for patients with retinopathy. So this is an initiative to actually control the retinopathy and control the diabetes because diabetes के कारण ही आंखें खराब हो रही हैं. तो अगर हम वो कंट्रोल नहीं करेंगे तो रेटिनोपैथी कभी ठीक नहीं हो पाएगी. डायबिटीज़ के कारण रेटिना में जो प्रॉब्लम आती है उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं. पॉइंटर दे देंगे. अच्छा. सो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारी है जो बढ़ती जा रही है. सो वी केम अक्रॉस आर team members which have joined Dr. Monga, Dr. Trivedi, Dr. Tushima, जो कि हमें help कर रहे थे to control this kind of picture. So we moved our level next and started this diabetic eye care preventive, diabetic related blindness preventive initiative. And so far we had been very successful in last 1.5 years. So we thought that let's go ahead and start it on a very large scale. Leading cause of blindness, अभी सबसे ज़्यादा जो young adult age group में blindness हो रही है वो diabetes के कारण ही हो रही है. So it is the need of the hour ताकि हम लोगों की आँखों को बचा सके, prevent कर सकें, so that we can prevent their vision loss. So this is the prevalence. Prevalence मतलब कि अभी लगभग 41 करोड़ लोग वर्ल्ड वाइड 2015 में डायबिटिक हैं जो कि दे विल गो टू 64 करोड़ बाय 2040 एंड इन पेशेंट्स में लगभग 35% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें डायबिटीज़ के कारण आंखों पे इफेक्ट आ गया है जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं. अभी इंडिया में ही
7 करोड़ लोग हैं जो कि डायबिटीज़ से इफेक्टेड है, विच विल गो ऑन टू 10 करोड़ एंड बाय 2045 देयर विल बी 13 करोड़. सो अगर हम 35% प्रेवलेंस माने, सो अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाएगी. नेक्स्ट. सो जब भी किसी को डायबिटीज़ डायग्नोज होता है फॉर द फर्स्ट टाइम, 20% पेशेंट्स को ऑलरेडी आई इन्वॉल्वमेंट हो चुकी होती है एंड 15 साल के अंदर 85% पेशेंट्स को डायबिटीज़ के कारण आँखों में इफेक्ट आ गया होता है. डायबिटीज़ कई तरीके से आँखों पे इफेक्ट डालती है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट पार्ट ऑफ द कॉर्निया ऑफ द आई, जिसको कॉर्निया बोलते हैं, जो नंबर 1 पे है, टिल नंबर 5 दैट इज़ कॉल्ड रेटिना. तो कैटरेक्ट जल्दी हो जाता है, पेशेंट्स को ग्लोकोमा जल्दी हो जाता है, काला मोतिया बोलते हैं. एंड रेटिना तो डेफिनेटली इफेक्ट होता ही है, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं. ये मैंने आई जस्ट शोन सम इमेजेस. ऐसा नहीं है कि आपको आज डायबिटीज़ हो गया तो आज डायबिटीज़ का इफेक्ट आपको आंखों पे आ जाएगा. एज आई सेड कि 20% पेशेंट्स को इमीडिएटली ऑन द डायग्नोसिस डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है एंड वो स्टेज वाइज प्रोग्रेस करती है. सो इट इज़ द की कि हमें वो जो स्टेज वाइज प्रोग्रेशन है उसको पहले ही रोकना है, उस पर ही एक्ट करना है. जब हम नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएंगे, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. जैसे कि ऑन द लेफ्ट यू कैन सी, ऑन योर राइट यू कैन सी दिस पेशेंट की बिल्कुल नॉर्मल विजन है, बट वो ऑलरेडी स्टेज 4-5 पे है. उसमें अब नॉर्मल नई नसें बन गई हैं. वो एक टाइम बॉम्ब पे बैठा हुआ है जो कभी भी फट सकता है और उसके फटने से आँखों में ब्लीडिंग हो जाएगी और उसकी विजन चली जाएगी. तो इस ये ऑन द लेफ्ट इट्स द ब्लीडिंग एंड ऑन द राइट रेटिना फट गया है. तो ये प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर विजन चली जाती है. उसके बाद ट्रीटमेंट करने का बहुत ज़्यादा आउटकम अच्छे नहीं रहते. तो जो पहली 3 स्टेजेस हैं या 4 स्टेजेस हैं, उसको अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ही की है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. दिस आई हैव पुट सम पिक्चर्स के नॉर्मल होते हुए भी रेटिना में स्वेलिंग आ जाती है, जो कि आजकल CT स्कैन से या OCT स्कैन से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड उसका ट्रीटमेंट हो जाता है. सो देयर आर सम रिस्क फैक्टर्स के किन पेशेंट्स को डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का ज़्यादा रिस्क है या किन पेशेंट्स को डायबिटीज़ के से एसोसिएटेड विजन लॉस का ज़्यादा रिस्क है. जिन पेशेंट्स का ग्लूकोज कंट्रोल सही नहीं रहता, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो स्मोक करते हैं, और जिनको डायबिटीज़ एसोसिएटेड और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे किडनी में प्रॉब्लम है या ब्रेन में प्रॉब्लम है या हार्ट में प्रॉब्लम है, तो इन पेशेंट्स को आँखों में इफेक्ट होने का ज़्यादा रिस्क रहता है. एक ट्रैक प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करते हैं फॉर आवर पेशेंट्स कि जिसको अगर हम टाइमली फॉलो करें तो हम अपनी आँखों को या एंड ऑर्गन डैमेज को बचा सकते हैं. T से है कि टाइमली दवाइयाँ लेना. कई लोग दवाई नहीं लेते कि मैं तो शुगर ठीक चल रहा है, बिकॉज शुगर का कोई इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं आता पेशेंट को. देन उसके बाद जो हेल्थ वेट है आपका उसको रीच करना, एक्टिव रहना, कंट्रोल करना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को, और स्मोकिंग क्विट करना. बट ये कोई कर नहीं पाता बिकॉज कोई समझाने वाला नहीं है, कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है जो कि इसको कोऑर्डिनेट कर सके कि कब क्या करना है. सो देयर केम द आइडिया ऑफ, नेक्स्ट करिए प्लीज़. इट लेट अस टू जस्ट लॉन्च दिस आई क्लिनिक्स डायबिटिक आई केयर प्रोग्राम. We are in very initial stages of it and we are following these protocols at our in-house hospitals. तो हमने ये समझा और असेस किया कि अगर कोई एक एजुकेटर, डायबिटिक एजुकेटर या डायबिटिक कोऑर्डिनेटर हम साथ में दे दें किसी को, तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करना है. तो मैं रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ, हम लोग सारे आई डॉक्टर्स हैं, तो हम आई तो ट्रीट कर ही रहे हैं, बट आई के साथ जो उसका मेन रूट कॉज है वो ट्रीट जब तक नहीं हो पाएगा तब तक वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होएगी. सो इट विल कीप हैपनिंग. तो फिर ये डायबिटिक आई केयर प्रोग्राम का हमें ज़रूरत लगी, क्योंकि जब किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी होते हैं या आई हॉस्पिटल्स में भी होते हैं तो आई डॉक्टर और डायबिटिक डॉक्टर के बीच में कोई सुलह नहीं होती. सब अपना अपना ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं बट कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं होता. सो दैट वाज द क्रक्स. नेक्स्ट स्लाइड. सो एज आई सेड, डायबिटिक रेटिनोपैथी मैनेजमेंट इंक्लूड्स रेटिनोपैथी मैनेजमेंट, मीन्स आई ट्रीटमेंट एंड डायबिटीज़ मैनेजमेंट. सो अभी तक हम लोग सिर्फ आई ट्रीटमेंट कर रहे थे, अब हमने डायबिटीज़ मैनेजमेंट भी इंक्लूड की है. आई ट्रीटमेंट में क्या क्या कर रहे थे वो मैं आपको बताता हूँ. नेक्स्ट स्लाइड. सो फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी की ट्रीटमेंट ऑप्शन में 4 चीज़ें आती हैं.
लेफ्ट में देखेंगे इंजेक्शंस लगते हैं, राइट में लेज़र, नीचे सर्जरी, बट जो टॉप मोस्ट है वो है ग्लूकोज लेवल कंट्रोल। सो आई प्रिवेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल है, विच इज़ ऑलवेज मिसिंग अमंग ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। किसी भी आई डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारा आपको स्वेलिंग है, आपकी विजन कम है, हमें ये ट्रीटमेंट देना है, ट्रीटमेंट देके फ्री कर देते हैं, बट एक्चुअल जो रूट कॉज है वो मिस हो रहा है। तो हमने भी आज तक डायबिटिक रेटिनोपैथी ट्रीटमेंट ऑप्शंस में ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल को हाई अप नहीं रखा था, ऑल्दो ट्रीटमेंट करने से के लिए कुछ प्रीरिक्विजिट्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं, बट वो हमारा मेन एम नहीं होता। आप अपने शुगर वाले पेशेंट डॉक्टर को दिखा लीजिए, शुगर कंट्रोल कर देंगे, ट्रीटमेंट के लिए ये आपको इंजेक्शन लगेगा, आप इंजेक्शन लगवाने आ जाइएगा। नेक्स्ट प्लीज। सो दीज आर सर्टेन इंजेक्शंस। नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी तक हम अपने डायबिटिक आई केयर प्रोग्राम में सिर्फ आई ट्रीट कर रहे थे विद दिस काइंड ऑफ अ रेटिनोपैथी ट्रैकिंग प्रोग्राम, जिसमें हम फंडस पिक्चर्स, ओसीटी करते हैं और उसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ये 2022 से लेके 2024 तक पेशेंट बीच में रहा है। आई जस्ट शो यू। सो ये इसकी सिवेरिटी मानी जाएगी। सो पेशेंट ठीक चल रहा था। एक नेक्स्ट स्लाइड करना, नेक्स्ट स्लाइड एक बस। तो यहाँ पर इसकी रेटिना में स्वेलिंग बढ़ गई, हमने ट्रीटमेंट दे दिया, पेशेंट ठीक रहा, फिर रेटिना में स्वेलिंग बढ़ गई, ट्रीटमेंट दे दिया, फिर पेशेंट ठीक रहा, वापस फिर पेशेंट ठीक रहा, फिर लास्ट में फिर स्वेलिंग बढ़ गई। लेकिन हमने इसमें कहीं पर भी शुगर के लिए इंटरवेंशन नहीं की। तो हम वी आर जस्ट फोकसिंग, दिस इज रेटिनोपैथी ट्रैकिंग। तो हम लोग 2-3 साल से पेशेंट का रेटिनोपैथी ट्रैक कर रहे हैं कि रेटिना में कितना स्वेलिंग आ रहा है, कितना विजन कम हो रहा है, अभी तक ये कर रहे थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बट वी गॉट पेशेंट्स, जो डॉक्टर तुषमा ज्वाइंड अस एज अ डायबिटिक एजुकेटर 2 years 3 years बैक, 2 years बैक। तो हमने ऑन ऑफ जिनको जो हमारी बात समझते हैं या समझना चाहते हैं उनको हम इनको एजुकेट करने के लिए डायबिटिक एजुकेटर रखे। फिर ग्रेजुअली वी हैड डॉक्टर मोंगा विद अस, ही इज़ अ डायबिटोलॉजिस्ट, ही विल बी स्पीकिंग अबाउट रेमिशन ऑफ डायबिटीज़। एंड कुछ पेशेंट्स हमने रिक्रूट किए और हमने देखा ओवर 2 years। Mr. Rajan Sani is not here. He is the live example. Nine years back, he had come to us with literally blind. He was literally blind with stage 5 diabetic retinopathy. And over 9 years, at that time, he was taking care of one of his office with his son. He stays in Punjabi Bagh only, East West Punjabi Bagh. Over 9 years, over 9 years, he has worked on himself. He's still at stage 5, maintaining his vision. Blood pressure is 110/70, lost 30 kgs and reversed all the changes. So ऐसे कुछ रशीमा मैम बैठे हुए हैं। So इनके सन इन लॉ इज़ ऑल्सो अ न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे कुछ पेशेंट्स थे जो कि डाइट कंट्रोल करके, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करके अपने डिजीज़ को रिवर्स कर रहे थे या स्टेबलाइज कर रहे थे। So then came the idea, then we took Dr. Tushma as on a payroll basis and a regular thing. And then मेरे को लगता है कि वो कुछ पेशेंट्स ने जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाई, that led us to move further in diabetes control. So we launched a 12-week program. 12 week इसलिए रखा कि एंगेजमेंट इससे ज़्यादा हमें भी नहीं पता पेशेंट कितना एंगेज रहेगा हमारे साथ, कितने दिन तक हमारे साथ बना रहेगा। आउटकम निकालना आसान है कि हमने कितना उनका ब्लड शुगर्स कंट्रोल कर पाए, आई में क्या फ़र्क आया। 3 months इज़ अ शॉर्ट टाइम, बट पेशेंट्स और हमें आपस में अंडरस्टैंडिंग से समझना पड़ता है। तो जिन लोगों को फ़ायदा होगा वो आगे तक ले जाएंगे, जिनको नहीं होगा वो रुक जाएंगे। बट दिस वॉज अ पायलट स्टडी काइंड ऑफ अ थिंग विच वी हैव केप्ट एज अ 12-week प्रोग्राम, जिसमें जो रेटिनोपैथी ट्रैकिंग थी वो चलती रहेगी, साथ में बॉडी के पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग चलती रहेगी, हमारी तरफ से पर्सनलाइज न्यूट्रिशन गाइडेंस रहेगी। माइंड बॉडी एक्सरसाइजेज के लिए डॉक्टर गोविंदा इज़ हेयर, ही इज़ फ्रॉम बालाजी निरोगधाम। देन अ continuous health monitoring will give us some good results. So that was the thought process, and we started recruiting patients from our clinic. Next slide. This is just a 12-week program. Next slide. So in which we had kept week 1 to 2, first 2 weeks just observation phase, जिसमें हम patients के blood test कराते हैं, उनसे क्या डाइट प्रेफर करते हैं, क्या खाते हैं, लाइफस्टाइल क्या है, सोते कितना है, पूरी डाइटरी हिस्ट्री एंड देयर
आप समझ लीजिए घर की दिनचर्या क्या है, क्या काम करते हैं, कब कहाँ पर होते हैं, टू असेस कि हम उनको क्या गाइडेंस दे सकते हैं खाने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, वो कितना चल सकते हैं, कितना वॉक कर सकते हैं, कितने स्टेप्स चल सकते हैं, वेट कितना है, बेड रिटर्न तो नहीं है। तो उसके हिसाब से वीक 1-2 में वी जस्ट सेट द गोल्स कि आपका HbA1c 9 है, हमें 3 महीने में 8 करना है कि 7 करना है, या 11 है हमने 9 करना है कि कितना करना है, वो टारगेट सेट करते हैं। एंड देन वीक 3 to 12 लाइक नेक्स्ट 2.5 months वी वर्क ऑन देयर ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल लेवल्स। एंड प्री स्क्रीनिंग होती है डॉक्टर स्क्रीनिंग के टाइम कि कितना HbA1c था, ब्लड पैरामीटर्स क्या थे, कोलेस्ट्रॉल कितना था, एंड 12 वीक्स पे देखते हैं। जिनको पॉजिटिव फीडबैक लगता है, वी मोस्टली लगता ही है, एंड देन वी एक्सटेंड द प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट 12 वीक्स। सो इससे पेशेंट को ये नहीं महसूस होता कि मेरे को 1 साल के लिए लेना। सो हमने इसको सब्सक्रिप्शन बेस्ड रखा है सो दैट पेशेंट्स ऐसा ना कहें कि, और बहुत मिनिमल कॉस्ट रखी है ताकि पेशेंट्स को ये भी ना लगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, बट उनको ये लगे कि हम somebody is taking care of us। बट ये कैसे टेक केयर होगा, नेक्स्ट टाइप। सो वी डेवलप्ड अ ऐप, वी हैव डेवलप्ड अ ऐप विच इज़ आई क्लिनिक्स ऐप, जिसमें डायबिटिक आई केयर का एक सेपरेट वर्टिकल बनाया है। इसमें पेशेंट को सेंट्रल रखा है, एंड एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट, बायोमार्कर ट्रैकिंग इज़ कि उसके ब्लड शुगर कितने हैं, कोलेस्ट्रॉल कितने हैं, पेशेंट अपना खुद सेल्फ एंटर करता है बेस्ड ऑन द प्रोटोकॉल विच वी हैव गिवन कि कब कब आपको टेस्ट कराना है, वेट कितना है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस कितनी है, BMI कितना है। एंड देन वी हैव ए हेल्थ कोच, डेडिकेटेड हेल्थ कोच, जो रोज़ पूछता है कि आज आपने क्या खाया, आप खाने की फ़ोटोज़ भेजिए, उससे कैलोरी काउंट निकलेगा, आपने एक्सरसाइज की कि नहीं की, आज कितने स्टेप्स चले। तो एक सहारा आपके साथ जुड़ जाता है जो कि आपको हेल्प करेगा। शुगर तो सबको है, बट कौन चेक करता है, कौन करता है, घर में किसकी बात मानते नहीं मानते। सो हमारी तरफ से ये एक पुश रहता है कि आपको रोज़ कोई ना कोई तंग करता रहेगा, भाई शुगर कंट्रोल रखनी है, नहीं तो आइज़ ख़राब हो जाएंगी। ये वो पेशेंट हैं, हमने वो पेशेंट्स ली हैं जिनका ऑलरेडी आई में ट्रीटमेंट चल रहा है। नेक्स्ट वी हैव कैटेगराइज आवर पेशेंट इनटू कैटेगरी 0, 1, 2, 3। 0 मीन्स जिनको जो प्री डायबिटिक हैं, जिनको या डायबिटिक हैं बट अभी डायबिटीज़ के चेंजेस नहीं आए, उनके लिए हमारे अलग टारगेट्स हैं। उनके लिए हमारा टारगेट है कि उनका डायबिटीज़ ख़त्म ही हो जाए, रिवर्सल हो जाए, जो डॉक्टर मूंगा विल स्पीक अबाउट इट। कैटेगरी 1-2 हैं जिनको डायबिटीज़ काफ़ी टाइम से है, उनका एंड ऑर्गन डैमेज शुरू हो गया है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत नहीं है, उनको ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता, तो उनका है कि उनका मेंटेनेंस रहे, और रिवर्सल हो जाए तो बहुत अच्छा। और तीसरा है जो कैटेगरी 3 है, जिनको बार बार ब्लीडिंग होती रहती है, स्वेलिंग हो जाती है, रोज़ ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ता है, लेज़र चाहिए बार बार, या सर्जरी की ज़रूरत है, उनको हमें हर 6 वीक्स एवरी 4 वीक्स हमें उनको देखने के लिए बुलाना पड़ता है। तो वो कैटेगरी 3 है, उसमें हमें है कि वो और डैमेज ना हो, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी एंड ऑर्गन डैमेज हो गया है। तो इसमें पेशेंट कम्युनिटी है, एक फिजिशियन अपॉइंटमेंट भी है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम कि अगर आपको अपने डायबिटोलॉजिस्ट से बात करने में दिक्कत हो रही है या आपको डायबिटोलॉजिस्ट समझ नहीं आ रहे, तो हमारे पास इन हाउस डायबिटोलॉजिस्ट हैं जो कि शुगर कंट्रोल करने में हेल्प कर देते हैं। सो ये ऐप इज़ द सेंट्रल थिंग विच इज़ हेल्पिंग आवर डायबिटिक आई पेशेंट्स टू एक्चुअली कंट्रोल देयर डायबिटीज़। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, सो देर इज़ ऑन द लेफ्ट यू कैन सी कि डायबिटीज़ का अलग से हमने ऐप में डाला है, एंड दे हैव टू पे अ लिटिल अमाउंट सो दैट दे कैन एक्सेस द नेक्स्ट थिंग। द अमाउंट सिर्फ एंगेजमेंट के लिए रखा है। इसमें हमारी 3 महीने की कंसल्टेशंस फ्री हैं, स्कैन्स फ्री हैं, न्यूट्रिशनल गाइडेंस फ्री है, डायबिटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन फ्री है, योगा फ्री है, सब कुछ। वी जस्ट वांटिंग के पेशेंट की आई ठीक हो जाए। तो आई तो हम कर ही रहे हैं ट्रीटमेंट, बट एट द सेम टाइम डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाए। सो ये हमारे फ्रेश पेशेंट है, आई थिंक यू कैन सी 24 फरवरी लिखा हुआ है शायद यहाँ पर, और ये 20 मार्च है। दिस इज़ हिज ब्लड प्रेशर प्रोफाइल। ऐसे ग्राफ्स बन जाते हैं, पेशेंट को अपना खुद ऐड करना होता है, एंड दिस इज शुगर प्रोफाइल। ये आई थिंक डॉक्टर मोंगा का लास्ट पेशेंट है। सो स्टार्टेड फ्रॉम 200 एंड देन 150, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ कमिंग डाउन। सो पेशेंट को भी बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि यार रियली आई एम ऑन द राइट ट्रैक। तो बेसिकली 2 टाइप ऑफ ट्रैकिंग हो रही है। एक दिस इज़ अ बॉडी ट्रैकिंग एंड रेटिनोपैथी ट्रैकिंग, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी कि आई का क्या स्टेटस चल रहा है। इन दोनों के अमेलगम को डायबिटिक आई केयर बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो की टेक अवेज जो भी आपके जानने वाले हों उनको बता सकते हैं। से इट इज़ अ प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम।
डायबिटिक रेटिनोपैथी से जो ब्लाइंडनेस है वो भी प्रिवेंटेबल है, बट प्रॉपर डायबिटीज़ कंट्रोल चाहिए होता है. अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी क्रिटिकल. ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, बट प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल. अब ये तो अभी तक हमारा इन हाउस था. सो नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट वी आर टेकिंग इट, वी आर next step, and we just want to go into a scalable I think protocol जिसमें ये national level पे जाए, which is very early to say, जिसमें we are going for an integrated care model. We are trying for a government help also in this, and we'll be using AI driven technologies. कुछ चीज़ें आती हैं जो फंडस कैमरास बोलते हैं, जिनके साथ हम अपने टेक्नीशियंस को डायबिटोलॉजिस्ट के पास, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में, एनसीडी क्लिनिक्स में, आरडब्ल्यूएस के पास, कॉर्पोरेट्स में भेज के डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग कर सकते हैं. जिसको शुगर है उसको आई की फ़ोटो लेके वहीं पता चल जाता है कि उसको डायबिटीज़ के कारण आँखों में इफेक्ट आ गया है, और उन पेशेंट को डॉक्टर को दिखाना चाहिए. सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट मॉडल. सो बेसिकली अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत ज़रूरी रहेंगे, जिसमें हमें हेल्थ वर्कर्स की और कम्युनिटी वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एंड वी हैव स्टार्टेड रिक्रूटिंग देम, एंड वी हैव गॉन फॉरवर्ड फॉर विद मोबाइल स्क्रीनिंग यूनिट्स, जिसमें गाड़ी में ही ये सारे कैमरास भी लगे जा सकते हैं और भी एग्जामिनेशन भी हो सकती है, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस, एंड जिनको ज़रूरत है फिर उसको ट्रीटमेंट के लिए बुलाने के लिए. नेक्स्ट. सो व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड आउटकम? सो लॉन्ग टर्म हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इफ़ इट गोज़ ऑन अ लार्जर स्केल, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट 40% रिडक्शन हो जाएगी डायबिटीज़ के कारण जो ब्लाइंडनेस हो रही है. सो आई डोंट नो आप लोग अवेयर हैं कि नहीं है, बट हमारे क्लिनिक में या मेरे पास डेली एक यंग पेशेंट होता है ब्लाइंड बिकॉज ऑफ शुगर. सो ऑन एन एवरेज 30 ब्लाइंड पेशेंट्स हम लोग हर महीने के देखते हैं. 50% इम्प्रूवमेंट इन ग्लाइसेमिक कंट्रोल, मतलब उसका शुगर सिर्फ लाइफस्टाइल इंटरवेंशन से, सिर्फ रोज़ फ़ोन करने से या ट्रैकिंग रखने से, डाइट न्यूट्रिशन से, योगा से, नेचुरल चीज़ों से हम लोग वी आर ट्राइंग कि रिडक्शन इन ब्लड शुगर हो जाए, एंड दवाइयों पे डिपेंडेंसी कम हो जाए. एंड 90% ऑफ वी आर जस्ट होपिंग कि जिसको भी डायबिटिक रेटिनोपैथी रिलेटेड विजन प्रॉब्लम है उसको विद इन 48 आवर्स ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए. So that so timely intervention is very important, which is very difficult in India, but that is our this thing. Next. So we are trying to, बहुत छोटा सा field है, but we are trying to create a brighter and healthier future, and we can prevent blindness and transform diabetic care in India. So basically the best way to predict the future is to create it. Thank you.